جی تمام دیکھنے سننے والوں کو رانا سرور کا سلام ہے۔ مسنون قادر مطلق آپ کو دنیا آخرت کی کامرانیاں عطا کرے۔ کافی دیر سے میں رابطوں میں تھا اور مجھے متعدد خبریں مل رہی تھی۔ میں چاہ رہا تھا کہ وہ ذرا فائنل ہو جائے پھر ویڈیو بناؤں۔ اس وقت عالمی اسٹیبلشمنٹ جاگ رہی ہے۔ یورپ، امریکہ، اس طرح جو طاقتور ملک ہیں ان کے سفیر جاگ رہے ہیں، مقتدر حلقے جاگ رہے ہیں اور سیاسی پارٹیاں جاگ رہی ہیں۔ اور جو بات اس وقت چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بلاول کو پی ایم بنانا چاہ رہی ہے اور نواز شریف صاحب اپنا لچ درمیان میں رکھے ہوئے ہیں، اور جو جینون پوزیشن آ رہی ہے اس میں نون لیگ سے پیپلز پارٹی کی سیٹیں کچھ زیادہ ہیں۔ جو جینون رزلٹ ہیں، جینون رزلٹ ان کے پاس پہنچ چکے ہیں، اس میں یہ ہے کہ اکثریت سے پی ٹی آئی جیت رہی ہے، دوسرے نمبر پہ پیپلز پارٹی ہے، تیسرے نمبر پہ نون لیگ آ رہی ہے، پھر اس طرح کر کے با پارٹی ایم کیو ایم ایسے کر کے۔ اب یہ بان متی کا کنبہ جوڑنے کے لیے خان صاحب نے جو الفاظ کہے تھے، ہم کوئی غلام ہیں کیا جو تم کہو گے وہ مان لیں، خان صاحب نے زبان سے کہا تھا، وہ پریکٹیکل ہمیں یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ تم غلام ہو، اور ایک رات کا ان کا جاگنا ہمیں ہمیشہ کے لیے غلام بنا جائے گا۔ زرداری اور بلاول نے بلینک پیپر پہ دستخط کر دیے ہیں عالمی اسٹیبلشمنٹ کو، جو دل کرے تم وہ کرو، ہم کچھ نہیں کہیں گے، جو حکم ہوگا ہم سر تسلیم خم کریں گے۔ اور وہ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کی تھوڑی بہت مجبوری بن جاتی ہے، ہماری کوئی مجبوری نہیں، جو کہو گے ہم وہ کریں گے۔ ایک اور کام ہو رہا ہے، اب یہ دینا چاہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے جو انڈیپینڈنٹ ہے نا، وہ مرکز میں بلاول کو پی ایم اور سندھ کی حکومت، پنجاب کی حکومت نون لیگ کو دے رہے ہیں۔ کے پی کے کا ان کا پلان ہے پی ٹی آئی کو حکومت دینے کا، اور پی ٹی آئی کے 60 سے 70 بندے انہوں نے کامیاب قرار دینے ہیں، 60 یا 65، ان میں سے 30 سے 40 وہ تمام ہمارے جو امیدوار ہیں ان میں سے اکثریت کے ساتھ اس وقت وہ رابطے میں ہیں، اور ان کو وہ قائل کر رہے ہیں کہ اگر تمہیں کامیاب قرار دے دیں تم پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو جاؤ گے۔ اب نواز شریف کو پرابلم یہ آ رہی ہے کہ پنجاب سے اگر اس کو ایم این اے مل گئے اور کچھ ایم پی اے مل گئے تحریک انصاف کے، تو آنے والے دنوں میں میرے لیے پنجاب میں پرابلم بنے گی اور ان کے قدم جو ہیں وہ پنجاب میں جم جائیں گے۔ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ وہاں ڈسکس ہو رہے ہیں۔ یار بات پتہ کیا ہے، ہم لوگ ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ کون کہتا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ کیا کہتا ہے۔ یار میں اپنے آپ کو پی ٹی آئی کے تمام ورکروں میں سے سب سے کم تر سمجھتا ہوں، دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے کم علم سمجھتا ہوں، لیکن میرا اگر اللہ چاہے تو اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے والا ہوں، اور اللہ مجھے ایسے ذرائع فراہم کر دیتا ہے جہاں سے مجھے خبر ملتی ہے، اور قبل از وقت میں خبر دے دیتا ہوں۔ بے شک ایک ٹیم مقرر کر دو اور میرے پورے چینل کو سرچ کرو، 80 سے 90% میری خبریں قبل از وقت ہوتی ہیں، اور جب میں بات کر رہا ہوتا ہوں اس وقت دوسروں کو کم سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ میں کل سے چیخ رہا ہوں، میں نے اپنے شہر کے اندر ہر پولنگ پہ ورکروں کو تیار کیا تھا کہ سب نے جانا ہے، اور 15 ہمارے امیدوار ہیں گجرانوالہ کے ہیں،
और मैंने इनसे कहा था कि 5 से 10 हज़ार एक उम्मीदवार के लिए वर्कर इकट्ठे करना कोई मुश्किल नहीं, लाख सवा लाख बंदा जब आरओ ऑफिस के बाहर जाके धरना दे के बैठ जाएगा, एक रात बैठने से मामला हल हो जाएगा। और मैं पूरे पंजाब से रिक्वेस्ट कर रहा था, मेरी वीडियो देख लो, बहुत छोटी छोटी 1.5 2 मिनट की वीडियो हैं जिनमें मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि वर्करों को सारे उम्मीदवार लेके और ऑफिस के बाहर जाके बैठ जाओ और अल्लाह करम कर देगा, अल्लाह अपना फजल कर देगा। इस वक्त जो मसला बना हुआ है, उन्होंने पीटीआई के वो बंदों को कामयाब करना है जिन्होंने पहले से अभी से तहरीरी तौर पे शमूलियत अख्तियार कर लेनी है। पहले शमूलियत, बाद में उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन। इस वजह से रिजल्ट लेट हो रहा है। दूसरा मामला ये बना हुआ है कि थोड़ी सी आंखें इन्होंने नवाज शरीफ को भी दिखा दी हैं, जिस वजह से वो उठ के चला गया है। और जो उसकी हस्बे रवायत वो फैमिली करती है कि उनके पास ऑडियो वीडियो होती हैं, तो उन्होंने फिर इशारातन ये भी कह दिया है अदारों को कि हमारे पास फिर बहुत सारे प्रूफ है कि जो हम पीटीआई को फराम कर देंगे। और वो सोशल मीडिया का एक जम्मे गफ़ीर रखते हैं और इन बातों को वो पूरी दुनिया में फैला देंगे। और उन्होंने डायरेक्ट नहीं कहा, इनडायरेक्ट कहा है कि ये ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ को ये भी ख़तरा है कि अगर मैं यहाँ थोड़ा सा इनको आंखें दिखाऊंगा, ये मुझे मुल्क से वापस नहीं जाने देंगे। अभी मुकदमात मेरे ऊपर बन सकते हैं, मैं गिरफ्त में भी आ सकता हूँ। और वो भी निढाल हैं और जरदारी और बिलावल खुशी से नहाल हैं। और पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं वो एक इम्तहान में दो-चार हैं। मैं वर्करों से कहता हूँ, अब भी अपने अपने हलकों में निकलो, अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में मैसेज करके अपने अपने उम्मीदवारों को कह दो कि बजाय इसके कामयाब होके उतर जाने के बेहतर है कि तुम हार जाओ। हमें हार पसंद है। पूरी दुनिया जानती है कि वोट पीटीआई को पड़े हैं, पूरी कौम जानती है, पूरे अदारे जानते हैं, सारा स्टाफ आज जो इलेक्शन का था वो सारा जानता है कि पीटीआई 2/3 अक्सरियत से कामयाब हो रही है। और जब ये इतने सारे लोग जानेंगे, 2 दिन पहले आप लोगों ने देखा है कि ब्यूरोक्रेट का बयान आया था, और इसके बाद ये टीचर, ये स्टाफ वाले और ये अफसरान, इनमें से बेशुमार जो हैं वो बयानात देंगे और बहुत कुछ होगा और आवाम उठ खड़ी होगी और इनकलाब आ जाएगा। तो मैं साथियों से कहता हूँ, आज मैं अपने इलाके के अंदर ये 3-4 यूनियन काउंसिलों के पोलिंगों पे मैं रिज़ल्ट लेता फिर रहा था और हर जगह पे मैं कारकुनों को कह रहा था कि धमाल ना डालो, अल्लाह का शुक्र अदा करो और अल्लाह के सामने गिरियाजारी करो। वोट तुम डाल चुके हो, अब इसकी हिफाजत करो। काश के मेरी जद्दोजहद कामयाब हो जाती और मेरे उम्मीदवार यहाँ से जम्मे गफ़ीर लेके आरओ ऑफिस पहुँच जाते, फ़ौरन वीडियो बना के हम सोशल मीडिया पे अपलोड करते और पूरा मुल्क देखता और पूरा मुल्क के लिए हम एक मिसाल बन जाते। अब क्या है, इन्होंने कुछ सीटें देनी हैं पीटीआई को जो अपोजिशन के लिए, वो केपीके से देनी है। पंजाब में से चंद एक होंगी, बाकी वो कोशिश उनको कर रहे हैं कि दिखाने के लिए, आर्मी मीडिया को भी दिखाने के लिए कि पीटीआई के भी कुछ 60-70 बंदे कामयाब हो गए हैं है। लेकिन उनमें से उनको उन्होंने कामयाब करवाना है जिन्होंने अभी से फॉर्म फिल करके उन्होंने पीपल्स पार्टी में, नून लीग में या ऐसे मुख्तलिफ जमातों में शमूलियत अख्तियार कर लेनी है। और वो इनको साथ ऑप्शन भी दे रहे हैं कि तुम नून लीग में जाना चाहो या पीपल्स पार्टी में जाना चाहो, लेकिन वो ज़्यादातर पीपल्स पार्टी का कह रहे हैं कि उसमें जाओ। और उनको साथ ये भी कह रहे हैं कि आने वाले वक्तों में जब सारे मिलके
मुल्क को हम इस्टेब्लिश कर लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और हालात चेंज हो जाएंगे, PTI पे हम पाबंदी लगाने वाले हैं आने करीब, और ये सारे हिस्से बखरे इसके हो जाने हैं। उसके बाद तुम्हें टिकट उन्हीं पार्टियों से मिलेंगे और मुस्तकिल तुम उम्मीद आइंदा कामयाब होगे। मेरा 35 से 40 साल का तजर्बा है सियासी। मैंने जो देखा है, मैंने जो परखा है, 35 साल मेरा अदारों से राब्ता है और मेल जोल है, और मेरा कोई दोस्ती का नहीं है, एज ए फरीक रहा है, और मैं इनके बारे में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रखता हूँ। इनके मजाज को, सोच को अच्छी तरह से समझता हूँ। इन लोगों ने अब क्या करना है कि आलमी इस्टेब्लिशमेंट को वो मौका फराहम करना है जो खान साहब ने उनको ललकारा था कि हम कोई ग़ुलाम हैं, जो तुम कहो वो मान लें, और उन्होंने ये दिखाना है कि हाँ तुम ग़ुलाम हो, जो हमने कहा तुमने माना। ओ भाई मेरे, जब हमारे मुल्क के मुक़्तदर हलके जिसमें सारी सियासी पार्टियां, सारे अदारे आ जाते हैं, जब उनकी वो मान के ग़ुलामी कबूल कर ले, तो ऑफिशियली तौर पे मैं और आप भी तो उनके ग़ुलाम बन गए। मैं इंशाअल्लाह ताला 1-2 दिन तक एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये साबित करूंगा कि मशरकी पाकिस्तान वोट के ज़रिए, अवाम के ज़रिए आज़ाद हुआ था। मगरबी पाकिस्तान को अवाम ने नहीं बनाया था, इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया था। इसलिए इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि जब ये मुल्क बनाया हमने है तो इस पे हक हमें है कि जिसे चाहे इक़्तिदार में लाएं, जिसे चाहे बाहर रखें। ना उस वक्त अवाम का किरदार था, ना अब है। ओ मेरे भाई, मगरबी वालों का ना सही, सेंट्रल इंडिया से जो हिजरत करके आए हैं, जिन्होंने लाखों की कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने अपना माल, घर बार, ज़मीनें, बिजनेस सारा कुछ वहाँ बर्बाद कर दिया, जानों के नजराने पेश कर दिए, असमतें लुटा दी। उन्होंने तो तहरीक चलाई थी ना, उन्होंने तो हिस्सा लिया था। और जो लुटे पुटे वहाँ से आए, उनको जब यहाँ के मुकामियों ने आने वालों को संभाला, और उनके पास तो ना खाने को था ना पहनने को था, ये सारे लवाजमात तो इन्होंने बतौर अंसार बनते हुए अदा किए। लेकिन इस पे मैं वीडियो बनाऊंगा। आज मैं कहता हूँ फ़ौरन एक्टिव हो जाओ। मुझे पता है सारे जाग रहे हो, तो अगर अपने अपने उम्मीदवारों के बारे में हर बंदा ये ऐलान कर दो कि ऐसा काम नहीं करना, वरना हमारे खां का सर झुक जाएगा। हमारे खां की ज़बान से निकले हुए अल्फाज उसे झूठा बना देंगे, उसे नाकाम बना देंगे। हम ग़ुलाम नहीं हैं। देखो, एक होता है किसी की बालादस्ती को कबूल कर लेना, एक होता है कबूल ना करना। लेकिन ठीक है, वो बालादस्त है, ठीक है, उसकी मर्जी, कभी वक़्त आएगा तो हम भी कर लेंगे। ये 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। एक होता है समझौते से तय कर लेना, जैसे 2 मुल्कों की जंग के दौरान एक होता है सीज़ फायर और एक होता है हथियार डालना। इसी तरह से हमारी आवाम के लिए भी ये है, या तो हम उनको तस्लीम कर लें। अगर हमारे उम्मीदवार उनको तस्लीम कर लेते हैं, हमारे गलों में ग़ुलामी के तौक पहना दिए जाएंगे, जो हो सकता है बेज़मीरों को नज़र ना आए, लेकिन बाज़मीरों को नज़र आएंगे और पूरी दुनिया को नज़र आएंगे। इसकी बजाय हम इनकार कर दें, यही होगा कि हमें इक़्तिदार नहीं मिलेगा, हमें सीटें नहीं मिलेंगी। हमारा ज़मीर, हमारा दिल, हमारी अना, हमारी गैरत अपनी जगह पे कायम रहेगी। कोई जुगनू सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फ़िक्र छोड़ो यारो, बस अपने घर का ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।